Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all hale and hearty over there at your homes and you are enjoying your lives and you are reading your books and whatever we have delivered till now for you in your previous classes as recorded lectures. Now let's get started with as we have already successfully finished dealing with all the tenses and the different structures and how we are supposed to use those basic necessities whenever we start thinking about. Now when we are thinking about English grammar, it deals with how to structure, how to form different types of sentences. In this part, the basic idea of tenses have been given over here for you, and you are supposed to read these examples first of all, and you are supposed to go through the exercise later on. So let's get started. As we have already done this, I would like to just revise it quickly, so you would be at ease to easily understand what we are going to deal with. Okay, let's start. Now read these sentences. You have been given some sentences. Now just have a look. Grandpa, we are speaking about a third person singular, and trust verb plus is लगा हुआ है, ठीक है, because the third person singular we are talking about is in present tense. So grandpa trusts his dog to keep him safe from the ostriches. Now second one is I raised. Now this is in simple past tense ed form, my hands to protect my face. Now the third sentence is I will never forget this story. मैं कभी नहीं भूलूंगा. This is in future tense. Now as you have already learned, this is present perfect you are used here. As we have already learned, हमने पहले ही सीख लिया है या सीख चुके हैं. There are three major tenses. अब देखो यहाँ पर हैं वाला आपको सेंस बताया था, बी की डिफरेंट फॉर्म में तीन सेंस टेंसेस होते हैं इंग्लिश में. द प्रेजेंट टेंस होता है लाइक इन सेंटेंस वन, द वन सेंटेंस नंबर वन, द पास्ट टेंस, ठीक है, द लाइक सेंटेंस टू इन द एग्जाम्पल, एंड द फ्यूचर टेंस लाइक सेंटेंस थ्री इन पर थर्ड सेंटेंस, ठीक है, लाइक इन सेंटेंस थ्री. Now study the table with the forms of the verbs to play. ठीक है, to play you have been given only one verb play and you are supposed to use it in different forms. ठीक है, as we have already used in your examples in the tenses, I started with the example that I play football, or he plays football, yeah, she plays football, they play football. Now simple present tense. Now simple present tense, you are supposed to remember the first, second, third person. देखो, this is most important. If the subject is I, you, we, they, you are supposed to use verb first form, the first form of the verb. And if it is the third person singular, you are supposed to add s or es. Okay, here you haven't been given the question forms, the negative forms, and the negative interrogative forms. You are given simply the affirmative, the positive sentences. Now देखो, it is with when we are talking about present continuous. I am playing. now वर्ब फोर्थ फॉर्म, बी के डिफरेंट फॉर्म्स में से एम यूज़ किया है. यू आर प्लेइंग, वी दे आर प्लेइंग, ही शी इट इज़ प्लेइंग, ठीक है. पास में क्या होता है, आई वी यू वी हैव द प्लेड, ही शी इट प्लेड. देयर इज नो डिफरेंस ऑफ वर्ब्स. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज इट. नाउ आई वॉज प्लेइंग, वी दे यू वेयर प्लेइंग, देखो, ठीक है, आई एन जी फॉर्म. ही शी इट वॉज प्लेइंग, देखो फिर से वही है, वॉज है थर्ड पर्सन के साथ. इन द फ्यूचर टेंस, I, you, we, they shall, ठीक है, I, we, you, they shall or will play. There is no difference, as I have already told you. You can use either shall or will in modern English. He, she, it will play. देखो verb का first form of the verb use किया, same, play, play, play. This is common, play, play, common, play, playing, 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 playing. I or you, we, they will be playing or shall be playing. He, she, it will be playing. So this is we have already done, and you have been given exercise. The first one is he drinks. This is in simple present tense. He drinks milk every morning. So this is in simple present tense. Now here in the second, you have been asked to identify which tense this is. So we shall be going. So simple future, sorry, future continuous है. तो कोलकाता later this year, इस साल कुछ देर बाद हम कोलकाता जा रहे हैं. My parents talked. मेरे पेरेंट्स ने बात की है या किया, सॉरी किया, to my aunt and uncle. तो सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि वो आपका सेकंड फॉर्म यूज़ किया है.
आई एम रीडिंग, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एन इंटरेस्टिंग बुक, एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। आई इट वॉज रेनिंग द इंटायर टाइम वी वेर देयर, देखो वी वेर देयर, हम वहाँ थे तब पूरा क्या हो रहा था, मुसलसल। इट वॉज रेनिंग द इंटायर टाइम, पूरा वक्त जब हम वहाँ पे थे तो बारिश हो रही थी, तो फास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और वी विल प्लांट मोर ट्रीज दिस ईयर, हम इस साल ज़्यादा पौधे उगाएंगे, तो ये भी फ्यूचर है। ठीक है, ये हमने कर लिया था, मैंने आपको सिर्फ इसलिए रिवाइज किया ताकि समझ जाओ कि मतलब यूं ही नहीं लेना है, पक्का समझ कर ही आगे जाना है। नाउ दिस वन हैज़ बीन लेफ्ट in the second part. Complete the sentences using the correct forms of the verb. You have been given some forms of the verb in the tense you are supposed to write in. किस टेंस में लिखना है और कौन सा वर्ब का फॉर्म होगा ये आपको करना है। तो देखो सबसे पहला इसने खुद करके दिया हुआ है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। दे विल बी विजिटिंग, एक्चुअली द वर्ब इज विजिट। ठीक है, द फोर्थ फॉर्म ऑफ यूज इज बिकॉज यू आर सपोज टू राइट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस द फ्यूचर, सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखना था, तो दे के साथ विल आएगा। दे विल बी विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, तो ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखो वी, अब यहाँ पे गो ही दिया हुआ है, देखो आपको आईएनजी यूज़ करना है, तो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वी के साथ आर यूज़ किया है, वी आर, तो गो का गोइंग हो जाएगा। वी आर गोइंग टू द बीच दिस इवनिंग, आज शाम हम बीच पे जा रहे हैं। उसके बाद लिखा है दिस टाइम, अब यहाँ पे देखो लीव दिया हुआ है और उसके बाद आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, कंटिन्यूअस में आईएनजी वाला होता है। तो दिस टाइम लास्ट ईयर, पिछले साल इस वक्त, आई वॉज लिविंग इन कोट्टायम में, कोट्टायम में रह रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको लीव दिया हुआ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो द फ्लाइट है, द फ्लाइट जहाज़ हो गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या यूज़ करना है, लीव प्लस एस, देखो लीव दिया है आपने एस ऐड किया है। द फ्लाइट लीव्स डेली एट 6:45 AM, 8 टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम 8 यूज़ करते हैं, अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हम इन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट वन दिया है, रिटर्न दिया है आपको वर्ब और आपको फ्यूचर टाइम शो करना है, तो वी विल रिटर्न नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले साल हम वापस आएंगे। ये हो गया आपका इंशाल्लाह, दिस इज़ फॉर योर, ठीक है, टेंसेस पार्ट। नाउ यू हैव बीन गिवन वोकेबुलरी पार्ट, व्हाई यू हैव बीन आस्क्ड टू रीड सम सेंटेंसेस। रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को पढ़ें। तो ये इंपरेटिव ऑर्डर दिया है। यू नाउ वन कैन आस्क व्हाट डू यू मीन बाय वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मीन्स द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अ पर्सन हैज़, एक पर्सन के पास होता है। ठीक है, व्हेन ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट और स्पीकिंग अबाउट सम सब्जेक्ट और स्टार्ट राइटिंग अबाउट सम सब्जेक्ट, व्हेन ही यूज सम वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर एक्चुअली कॉल्ड द वोकेबुलरी। ठीक है, वोकेबुलरी उस चीज़ को कहते हैं, यानी आपकी किताब में हो वो नहीं, जो आपके जहन में हो, जब आप सोचते हैं बोलते हैं तब यूज़ करते हैं, तो उसको वोकेबुलरी कहते हैं। आप देखें, दे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लुक आफ्टर। ठीक है, अब देखो लुक एक्चुअल वर्ब है, उसके आगे प्रीपोजिशन है, इनको असल में फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। लुक आफ्टर ऑस्ट्रिचेस इन द गेम, वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रिचेस की देखभाल करते हैं कैंप में। लुक आफ्टर, अब देखो हम इस लुक आफ्टर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम दोनों किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। इस की कौन है, ये लुक आफ्टर जो है वो है, तो क्या है, ए फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, दैट मीन्स, जिसका मतलब है, अब जिसका किसका, इसका है। ठीक है, इस फ्रेजल वर्ब का। ठीक है, दैट मीन्स, देखो मीन्स क्यों लगा, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब एक ही है, तो मीन पे फिर से दैट मीन्स डूइंग व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज नीडेड जो ज़रूरत है, टू कीप समवन और समथिंग हेल्दी एंड सेफ, किसी को सेहतमंद रखना, किसी को महफूज रखने के लिए जो काम किया जाता है, उस चीज़ को इंग्लिश वर्ब में क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब में लुक आफ्टर कहते हैं। यानी आप यूज़ कर सकते हो, यू नो आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस। ठीक है, हमारे पेरेंट्स प्लूरल हैं तो हमारी देखभाल करते हैं, हमें हमारी हिफाजत करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो लुक आफ्टर उस चीज़ को कहते हैं। अब अगर मैं इस पे सब्जेक्ट को बदलूँ, अगर ही करूँ, यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन करूँ, तो ही लुक्स आफ्टर आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। अब अगर मैं इसको पास्ट में लिखूं, ही हो या दे हो या कोई भी हो, तो क्या लिखेंगे हम, लुक्ड आफ्टर। ठीक है, तो देखो कितना बदल जाता है। अगर मैं इसको कंटिन्यूअस में लिखूं, तो ही, अगर ही रखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इस लुकिंग आफ्टर, तो देखो लुकिंग आफ्टर, वो देखभाल कर रहा है। समझ रहे होंगे आप लोग, आपको इतना टेंस सिखाया तो अगर दे लिखेंगे, दे आर लुकिंग आफ्टर। ठीक है, तो इसको इस तरह से बदलना है।
इंशाल्लाह आप समझ रहे होंगे कि किस बेस पर ये सर कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज हमने बहुत टाइम लगाया है ताकि आपको एक्सरसाइज पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, खुद समझ जाओ, खुद करने की कोशिश करो ना। आप क्या बोला है, ठीक है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, क्या करने के लिए, विथ द करेक्ट फॉर्म्स। अब देखो आपको करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है। देखो करेक्ट फॉर्म कैसा होगा, अभी यहाँ पे लुक आफ्टर सही था, अगर मैंने सब्जेक्ट बदल दिया तो लुक्स हो गया, अगर मैंने टेंस बदल दिया तो पास में लुक्ड हो गया, लुक्ड आफ्टर हो जाएगा, अगर मैंने टेंस में कंटिन्यूस रखा तो इस लुकिंग हो गया, अगर मैं उसको पास में लिखूँ तो वॉज लुकिंग हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्म को यूज़ करना है। देखो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स, अब इन फ्रेजल वर्ब्स की भी करेक्ट फॉर्म होता है, लेकिन सिर्फ वर्ब का होता है, जो पीछे प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा होता है उसको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो लुक अहेड है, देखो सबसे पहले आपको लुक अहेड है, इसका मतलब होता है थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कि जस्ट लुक अहेड, ठीक है, लुक अहेड, ठीक है। आप समझ जाओ इस बात को कैसे यूज़ करना है। when you are studying in your classes, suppose you are now is it's a fact that you are in 6th class, you should look ahead, ठीक है। लुक अहेड मत अब क्या मतलब है, क्या आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, आगे सोचना चाहिए कि क्या होगा। यू आर नॉट सपोज टू स्टे इन 6th क्लास, यू शुड लुक अहेड, आपको आगे देखना चाहिए। अब देखो मैं शुड यूज़ कर रहा हूँ, देखना चाहिए, ठीक है। अब मैं किसी के थर्ड के बारे में तो ही इज़ अ वेरी ही और शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल या बॉय है, ठीक है, हमने बोला, या स्टूडेंट है बोला, फिर क्या बोला है, शी ऑलवेज लुक्स अहेड। अब मैं अगर शी यूज़ करूँ तो लुक्स अहेड, वो हमेशा आगे देखती है, ठीक है। शी इज़ नॉट स्वेड बाय द ट्रिवियल इंटरटेनमेंट्स और इमोशंस, छोटी छोटी बातों से वो बह नहीं जाता है, मतलब, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शी ऑलवेज लुक्स अहेड, तो वो हमेशा आगे देखता है। ही ऑलवेज लुक्स अहेड, तो इस तरह फॉर्म बदल जाता है। अब इसने लुक अहेड रखा है। लुक अराउंड, अब लुक अराउंड इसका बेसिक फॉर्म सबको दिया है। लुक अराउंड क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, टू एक्सप्लोर, उस किसी चीज़ को तलाश करना, किसी चीज़ के बारे में पता करना, टू सी व्हाट इज़ देयर, कि वहाँ पे क्या है, या टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ की तलाश करने को कहते हैं। तो देखो लुक है सारे के साथ, लेकिन पीछे एडवर्ब या फिर आपको प्रीपोजिशन यूज़ किया तो उसका मीनिंग बदल जाता है, उनको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो इनका कोई रूल नहीं होता है, रूल बाकी टेंस वाला लगता है, अगर आप बदल दो इसको प्रेजेंट में, पास में, फ्यूचर में, कंटिन्यूस में, जिसमें भी लिख रहे हो लेकिन इनका मीनिंग फ़र्क करता है इनके साथ, सबका अलग अलग मतलब है। लुक इनटू, अब लुक इनटू का मतलब है, लुक तो देखना होता है हर तरह, लेकिन लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, तफ्तीश करना, या फिर एग्जामाइन करना। अब लुक ओवर क्या होता है, स्विफ्ट ग्लांस, फटाफट देखकर गुजर जाना, ठीक है। लुक थ्रू होता है यानी यंग एग्जामाइन करना, ठीक है, किसी चीज़ में अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करना, खासकर एरर ढूंढने को यूज़ किया है यहाँ पे। अब लुकअप क्या होता है, लुकअप दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी, तो अपनी डिक्शनरी में देखो, सीक इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना या कंसल्ट करना, इसी से हवाला मांगना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब देखो एग्जरसाइज में क्या दिया है, द पुलिस आर, क्योंकि देखो बेटा इसमें आर यूज़ किया है, पुलिस वैसे भी कलेक्टिव नाउन है, तो पुलिस आर, ठीक है, पूरा डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, पुलिस वाले पर्सनल जो हैं उनकी बात कर रहा है। द पुलिस आर लुक इनटू था, अब हमने लिखा है लुकिंग इनटू, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में है, आर के साथ हैं, तो लुकिंग इनटू द बर्गलरी होती है, किसी के घर में जो चोरी हो जाता है उसको बर्गलरी कहते हैं, घर में घुस के चोरी किया हो तो उसको बर्गलरी कहते हैं। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द बर्गलरी एट मिस्टर वर्मा's हाउस, मिस्टर वर्मा के घर पे जो चोरी हो गई थी, पुलिस उसको देख रही है, तो क्या मतलब हुआ लुक इनटू, हमने बोला था यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखो, अब अपनी सेंटेंसेस में आप अपनी मर्जी से भी यूज़ कर सकते हैं। आई आस्क्ड, अब देखो ये पास्ट में है ना, माई सिस्टर टू लुक थ्रू, ठीक है। अब मैंने अपनी सिस्टर से कहा, ठीक है। अब यहाँ पे सर ये पास में है, तो आपने यहाँ पे इसका शक्ल तो ऐसे कैसे रखा है, हाँ बेटा आपको एक बात बताया था कि इन्फिनेटिव फॉर्म भी होता है, जिसके आगे हम क्या लगाते हैं, सिर्फ टू लगाते हैं, तो देखो इन्फिनेटिव फॉर्म है टू लुक, समझ रहे हो। तो आई आस्क माई सिस्टर, ये कभी नहीं बदलता है ना,
ये इन्फिनिटिव क्यों बोलते हैं, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। इन्फिनिटिव इसलिए बोलते हैं कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट और सब्जेक्ट कोई इसी तरह रहता है। तो इसलिए आई आस्क्ड माई सिस्टर टू लुक थ्रू माई एसे, तो मेरे एसे को एग्जामाइन करें, इन्वेस्टिगेट करें उसमें, बिफोर आई हैंड इट ओवर, इससे पहले कि मैं इसको किसी के हवाले कर रहा हूँ, टीचर को दूँ या किसी और को दूँ। तो मैंने अपने सिस्टर से कहा कि मेहरबानी करके उसमें गलतियाँ देखें, एग्जामाइन करें। ठीक है। थर्ड क्या है, आई वॉन्ट टू टेक ए लुक अराउंड। अब देखो आई वॉन्ट टू टेक, ठीक, मैं चाहता हूँ, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में है, टू टेक ए लुक अराउंड। ठीक है। अब यहाँ पे एक नज़र देखना, ठीक है। यहाँ पे लुक अराउंड का क्या मतलब है, इसमें यहाँ पे मीनिंग बोला आपको, एक्सप्लोर, टू सी व्हाट इज़ देयर, टू सर्च फॉर समथिंग। तो अब यहाँ पे देखने के इसमें यूज़ किया है। आई वॉन्ट टू टेक ए लुक, ठीक है, मैं एक नज़र देखना चाहता था, टेक ए लुक कहते हैं असल में, ठीक है, एक नज़र देखना चाहता था अराउंड, इर्द गिर्द, दिस ब्यूटीफुल टाउन, इस खूबसूरत जगह के इर्द गिर्द मैं देखना चाहता था कि वहाँ पे क्या है। ठीक है। बिफोर वी लीव टुमारो मॉर्निंग, इससे पहले कि हम कल छोड़कर चले जाएं। ठीक है, कल यहाँ से चले जाएं। ही लुक्ड ओवर व्हेन आई कॉल्ड हिम, देखो अब यहाँ पे व्हेन आई कॉल्ड हिम, तो ये पास्ट टेंस में, तो आगे वाला पास में होगा। ही लुक्ड ओवर, अब लुक्ड ओवर को क्या बोला था मैंने, देखो लुक ओवर दिया है हमने, लुक्ड ओवर है तो स्विफ्ट ग्लांस कहा था, क्विकली एक नज़र देखना उसको कहा था। उसने एक नज़र जल्दी देखा, व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे आवाज़ दी। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फिर, वी नीड टू लुक अहेड, अभी आपको बोला था फ्यूचर की बात कर रहे थे, आगे देखने की ज़रूरत है। नाउ वी नीड टू लुक अहेड, नाउ हमें आगे देखने की ज़रूरत है। वाइल वी आर प्लानिंग द प्रोजेक्ट, जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब हमें क्या करना है, तो अगर हाँ सपोज आप पिकनिक पे जा रहे हो तो आपको क्या करते हैं, वी नीड टू लुक अहेड नाउ। ठीक है। हाउ मच वी थिंक अबाउट द प्रेजेंट, कितना सोचेंगे, आगे के बारे में भी कुछ सोचने की ज़रूरत है, तो इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो, ही लुक्ड अप द मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजेस इन द डिक्शनरी, उसने देखा मीनिंग्स को, कहाँ पे देखा, डिक्शनरी में देखा। लुक्ड अप मैंने कहा था कंसल्ट करना या देखना। तो होप यू हैव एंजॉयड इट, keep it till here, we will continue in our next class. This is your 6th class writing tasks. Listening is not there in our, we have a problem because we don't have the audio, so we'll skip this exercise. The writing part we will see, it's a report writing, but before that you need to, if you are supposed to write something, if you are doing reporting, you need to know the exact idea of how to report, that is related to your tenses, direct and indirect speech. So we will try it later, inshallah. For the time being, I am going to skip this part as well. Okay, we will continue when you got used to the direct and indirect speeches, inshallah. So we have finished your chapter with this, inshallah. You have got it, what I have told you. So we'll continue with our next chapter, inshallah. Thank you for your kind attention. Khuda Hafiz.